को बंजारो राम को मेरा टांडला दिया जाएगी को बंजारो राम को मेरा टांडला दिया जाए रे रहा जैसा रंग कसुंभ का तैसा एक संसार जैसा रंग कसुंभ का तैसा एक संसार जैसा रंग कसुंभ का तैसा ये संसार जैसा रंग कसुंभ का तैसा ये संसार तैसा मेरे राम ये रंग मजीठ का कौरविदास चमार मेरे राम रंग मजीठ का कौरविदास चमार तैसा ये संसार जैसा रंग कसुंभ का तैसा ये संसार को बंजारो राम को मेरा टांडला दिया जाए रे ओ बंजारो राम को मेरा टांडला दिया जाए रहाओ को बंजारो राम को मेरा टांडला टांडला दिया जाए रे जैसा रंग कसुंभ का तैसा ये संसार जैसा रंग कसुंभ का तैसा ये कट अब कट डूगर कणा एक निर्गुण बैल
जैसा रंग के दानिया लिख ले आलू पता तजिले सरब जंजाल तैसा ये संसार जैसा रंग कुसुम का तैसा ये संसार को बंजारो राम को टांडा ला दिया जाए रे रहाओ को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे जैसा रंग कुसुम का ऐसा है ये रंग मजीठ का गौरवदास जमा तैसा ये संसार तैसा ये संसार तैसा ये संसार। असी जो शब्द गायन किया है गौड़ी बैरागण भाव गौड़ी राग दी एक ब्रांच है बैरागण सो राग का नाम बनया गौड़ी बैरागण गुरु ग्रंथ साहिब के 345 भाव 345 अंक के शब्द गौड़ी बैरागण राग विच रविदास जी वालों उच्चारण किया गया है। इसका सिरलेख है शब्द का रहा हुआ है को बंजारू राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे ये शब्द का रहा हुआ है। कोई भी जेकर वणज करना चाहता है व्यापार करना चाहता है कोई भी गिव एंड टेक करना चाहता है लेन देन का व्यवहार कोई करना चाहता है जिसनों असीं कहते हैं शाह व्यापारी द्वारा आए वखर काडो सौदा कराए या असीं पढ़ते हैं सच व्यापार करो व्यापारी ਜਾਂ जपजी साहब विच पढ़ते हैं असी कि विरला बनने वाले मन नूं अमुल गुण अमुल व्यापार की गल समझ आती है तो ऐसा व्यापार करता है चंगे गुणा का चंगे गुणा नूं रब जी की गॉडली क्वालिटीज़ कहते हैं वर्च्यूज़ कहते हैं और मैं अपने टांडा भाव मेरा जिहड़ा कैरीयर है उहदे विच मैं वर्च्यूज़ चंगे गुणा नूं लद के जा रहा किसी ने भी मेरे नाल इसका व्यवहार करना होए तो कर सकता है
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀਏ, ਔਗਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਬੈਕ ਬਾਈਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਬੈਕ ਸਟੈਬਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ, ਡੀਮਨਸ ਥਾਟਸ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋ ਬੰਜਾਰੂ ਰਾਮ ਕੋ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਪਲ ਹੋਵੇ, ਸੇਬ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਧਾ ਸੇਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂ, ਅੱਧਾ ਸੇਬ ਮੈਂ ਆਪ ਖਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੇਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝ ਕਰੇਗਾ, ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਬ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਸੇਬ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਗੁਣ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਗੁਣ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਗੁਣ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ, ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪਿਉ ਦਾ ਦੇ ਕਾ ਫੂਲ ਮਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਿਉ ਦਾ ਦੇ ਕਾ ਫੂਲ ਮਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਧਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਿਆ ਨਿਧਾਨ। ਜਿਸਨੇ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਧਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਣਾ, ਖਾਵੇ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਪਾਲਕ ਸਚ ਨਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਉਹਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧਦਾ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ।
टोट ना आवे बदो जाई रब्बी गुण। सो एप्पल शेयर करदियां वो अद्धा रह जाता है, ये रशियन सेइंग है। पर जे चंगे गुणां नूं सांझ करिए वो वधदे हन। इन्हां नूं चढ़ा चौगण वन कहते हैं। वो होर दसूणी होए होर वधदे ने, 10 गुना वधदे ने। इंग्लिश चलू कहते हैं फोर्टिफाइड होना, होर मल्टीप्लाई होंदे जाते हैं ज्यों ज्यों असीं चंगे गुण सांझ करते हैं। जदों कदे भी कोई मनुख चुप रहिंदा है, पता नहीं लगता कि चुप अपने सुभाव करके है या मीसणा चुप है, मक्कर मारी हुई है इसने। लेकिन जिहड़ा मीसणा चुप है या अपने सिर्फ सुभाव करके चुप है, गल तो पता तां लगेगी जदों गल साडे नाल सांझ करेगा, जदों अपनी जुबान खोलेगा, उहदे कोल जो जिए होए सो उगवे, जो उहदे अंदर होएगा वो बाहर बोलेगा। सो जिस इंसान को पॉलिटिक्स का शौक है वो तुहाडे नाल बैठेगा, वो पॉलिटिक्स डिस्कस करेगा। जिसके कोल खजाना शेयर मार्केट का वो शेयर मार्केट डिस्कस करेगा। जिहदे कोल दुनियावी फैशन की गल्लां ने वो दुनियावी फैशन दी गल्लां करेगा, या कोई खाण पीण दी गल्लां करेगा, या केवल टब्बर दी और धियां पुत्रां दी गल्लां करेगा। इस तरह दुनिया कोल अपना अपना खजाना है। अज दे शब्द बड़ी पॉजिटिव गल कीती है कि मेरे कोल खजाना रब्बी गुणां दा है, को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए। कबीर साहब पूछते हैं, कबीर साहब दसते हैं, कबीर साहब कहते हैं कोहे लड़का बेचे लड़की बेचे, कोई साझा करे कबीर स्यों हार स्यों बनज करे। जे मेरे लोगों को मैं बेनती करदा हाँ कि कोहे लड़का बेचे लड़की बेचे कोई। कबीर साहब कहते हैं ऐसा कोई ना जन्म्यो अपने कर लावे आग, पांचों लड़का जार कह रहे रामलीव लाग। ऐसा कोई नहीं मैनू लभ्या जिहड़ा अपना घर साड़ देवे अते अपने पंजों पुत्रां नूं अग ला देवे। दुनिया च मसा मसा लोगों का एक पुत्र होंदा है, 5 पुत्र होंदे नहीं। ये बाहरले धियां पुत्रां दी गल नहीं चल रही। कबीर साहब कहते हैं जिन्हां जिन्हां लोगों कोल काम क्रोध लोभ ओंकार वर्गे पुत्र ने ना, कोई उसनूं साड़े पांचों लड़का। ते अगले श्लोक कहते हैं कोहे लड़का बेचे लड़की बेचे कोई, ਜਿਹੜੇ 5 पुत्र भी मार सके। अते लड़की की कहते हैं ਧੀਆਂ ਨੂੰ नहीं कहते हैं, भरूण हत्या बारे गल नहीं चल रही। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, मेरे अवगुणा के कट्ठे किए कुटुंब के मेरे काम क्रोध ओंकार पुत्र अते आशा तृष्णा निंदा चुगली इस किस्म दियां ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ साड़ देवे। इन्हां ਨੂੰ साड़न तो बाद कोहे लड़का बेची लड़की बेचे कोई साझा करे कबीर स्यों, आके मेरे नाल साझ करो, ये बिजनेस करो मेरे नाल, साझा करे कबीर स्यों हारस्यों बनज करे। ये रब जी के गुणा का व्यापार होंदा है। किन ही बन जा काशी तांबा, किन ही लौंग सुपारी, संतो बन जा नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी। मेरे को जिहड़ा असैट है कैपिटल है वो है चंगे गुणा दा, वर्च्यूज दा। असी किस धड़े दे हाँ, असी किस पहरावे दे हाँ, असी केड़े धर्म नूं मनदे हाँ, असी केड़े ग्रुप दे हाँ, असी केड़े देश विच रहिंदे हाँ, किस जेंडर दे हाँ। ये गल्लां सब सुपरफ्लूअस हैं। गल तो सोचने वाली है जदों असी सिर जोड़ के बैठते हाँ, असी डिस्कस की करते हाँ। जे तो रब्बी गुणा का कोल खजाना है तो वह व्यापार करांगे, वरना असी अपना समा जाया करते हाँ। अज दे शब्द विच हुण ओह दस्सण लगे ने कि जेकर तू रब्बी गुणा की सांझ करता है ये परमानेंट होंदे ने, इन्हां नूं मजीठ का रंग कहंदे ने। ते जेकर तू दुनियावी कच्चे पिल्लियां वालियां गल्लां सांझ करता रहता है, इन्हां नूं कसुंभ दा रंग कहंदे ने। सो असी दुनियावी जिहड़ियां गल्लां करदे हां, इन्हां गल्लां दे नाल साडा मन बेचैन हुंदा है, सानूं चैन नहीं आंदा। दुनियावी गल्लां डज नॉट मीन कि असी जिहड़ा समाज का सुधार करना वो ना करिए। दुनियावी गल्लां जिहदे विच असी शैतानीयत जम्मा वाले ख्याल सीखते हाँ। देखो जी फलाणिया ने दाज इतना दिता,
देखो जी फलाणिਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਸ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਥਿੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 99% नहीं 100% खबरां ये आंदियां फलानी जगह मुंडे नाल कुड़ी वाले धोखा कर गए, फलानी जगह कुड़ी वालियां नाल मुंडे वालियां ने धोखा किया, फलानी जगह मुंडे ने या उहदे माँ प्यो ने मिल के कुड़ी नूं साड़ दिता। पर ऐसियां चंगियां खबरां आंदियां ही नहीं कि फलानी जगह सादा विआह होया, फलानी जगह उन्होंने शराब नहीं वरताई, फलानी जगह उन्होंने कुड़ी वालियां कोलों दाज विच कुछ भी नहीं मंगिया। ये गल्लां फैलाइयां नहीं जांदियां। जदों ये गल्लां फैलाइयां नहीं जांदियां ते व्यापार नकम्मियां गल्लां दा कीता ते लोकी दिनों दिन अपने आचरण तो अपने समाजिक ढांचे विच टहंदियां गल्लां विच जांदे हन। इसी करके जदों गुरु पातशाह बाणी उचारदे ने तां बाणी च कहंदे ने तैनूं गृहस्थी होना चाहिए, तैनूं जंगल विच चले नहीं जाना चाहिए, बल्कि सिद्ध छप बैठे पर्वती कौन जगत को पार उतारा, तू चौकड़ा मार के किथे जंगल विच तप नहीं करने ने, तैनूं समाज विच विचरना है ते समाज विच समाज सुधार का भी ध्यान रखना है। बाणी पढ़द्या पढ़द्या अपना जीवन बनाते जाना है, अपना जीवन बनाते जाइए। साडी रहत मर्यादा कहंदी है, इहनूं कहंदे ने शख्सी रहनी, ते समाज का सुधार करते जाना, नाल नाल इहनूं कहंदे ने पंथक रहनी। सो ये गुरसिख का जीवन है कि वह शख्सी ਅਤੇ पंथक रहने ਵਿੱਚ तत्पर रहता है, समाज सुधार ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ पूरा अपने आप ਨੂੰ ਸਾਂਝ करता है। पर रोज़मर्रा के जीवन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ सिर्फ सिखां ਨੂੰ ਤੇ नहीं मिलते हैं ना, रोज़मर्रा के जीवन ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मिलते हैं। ਅਸੀਂ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी बोधी डाइवर्सिटी ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ किस तरीके का व्यवहार करते हैं ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ है। ये शब्द का रहाव है। शब्द के रहाव तो बाद असी पंक्ति बार बार गायन करते सी, रहाव की पंक्ति तो इलावा, जैसा रंग कसुंभ का तैसा ये संसार। एक तो संसार असी देखते हैं बाहरला, असी इसनूं संसार कहते हैं। लेकिन जदों असी शब्दों की गहराई में जावांगे और अपने आप का सुधार करन बैठांगे, जिसनूं असी इंट्रोस्पैक्शन कहते हैं, तो संसार होंदा है मेरा थॉट प्रोसैस, मेरे जिहड़े ख्याल ने। जेकर मैं अपने ख्यालों बैठा हुआ और मेरे घर वाले पुछन रोटी खानी है, मैं जवाब ही ना दें, रोटी में लूण ही ना पाया हो, मैं कुछ बोला ही ना, खा जावां, वो कहण तू रोटी खा ली, मैनू पता ही नहीं लगे, तो गल्लां करते हैं। ये अपनी दुनिया च गवाचिया रहता है। अपनी दुनिया मीनस अपने सोचनी दे उहदे विच। सो जैसी मनुख की संगत होती है वैसा उसके उत्ते रंग चढ़ जाता है, तो जैसा रंग चढ़ता है वैसा उसका थॉट प्रोसैस बनता है। अज असी मना रहे हैं होला महला, तो होले महल्ले विच मैं यह सीखना है मेरे मन उत्ते केड़ा रंग चढ़िया होया, तो मेरे मन उत्ते जमा की बुद्धि वाला मंदे ख्यालों का रंग चढ़िया होया। जमा की बुद्धि वाले मंदे ख्यालों के रंग नूं कसुंभ का रंग कहते हैं, कच्चा होंदा है। कच्चा रंग मनुख नूं छड्डना ही पैंदा है। वन इज बाउंड टू लीव इट। फॉर एग्जाम्पल, एक मनुख नूं क्रोध चढ़ता है, ਉਹਦਾ क्रोध नाल बीपी हाई होंदा, ਉਹਦਾ एड्रेनलिन लैवल अप हो जाता, वह हाइपर हो जाता, टेंस्ड रहता है। अल्टीमेटली वो चाहता है मैं तो इन्हां दे कारण गुस्से होया, मैं तो इन्हां दे कारण गुस्से होया, ये ना इस तरह गलतियां करया करन ते मैनूं गुस्सा नहीं चढ़ेगा। इहदा मतलब वो अपने गुस्से तो परेशान होता है। अल्टीमेटली वो अपने गुस्से तो शांत होना चाहता है। उसनूं नींदर ही तां आती है जदों गुस्से तो शांत हो जाता है। हर किसी नूं अपना अवगुण सतांदा है, गल वखरी है, वो छड्डना चाहुंदा नहीं है। पर कुदरत का खरा सच है कि उसनूं हुक्म अंदर रहना चाहिए, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। जदों क्रोध और किसी भी अवगुण की सांझ करता है तो वह हुक्म तो बाहर जाने की कोशिश करता है। अल्टीमेटली उसनूं बैक टू स्क्वेयर वन आना पैंदा है।
दुनिया का हर मनुख जदों अवगुण करता है वो सब तो पहला काम की करता है, और रजा तो उलट चलन वास्ते सच सुनना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसने पता है सच दी आंधी आ जाएगी। देखो पाई ज्ञान की आई आंधी, देखो पाई ज्ञान की आई, सभे उड़ानी ब्रह्म की टाटी, रह न माया बांधी। देखो पाई ज्ञान की आई आंधी, देखो पाई ज्ञान की आई आंधी। हर मनुख नूं डर लगता है, जे मैं सच सुन लिया ज्ञान की हनेरी आएगी, मेरी सोचनी दा छान छप्पर, मेरी छत, मेरे थॉट प्रोसेस नूं उड़ा के ले जाएगी। इस करके मनुख सच दा संग करता नहीं है, सत्संग करता नहीं है। ओनू पता है कि मेरे अवगुणा दे ख्याल मंदे हन। मैं एक माता जी ने पूछा, मनु तुसी कहते होंदे सी कि मैं फिल्मां बहुत तकदी सी, माता जी अजकल देखते हो? कहते नहीं, अजकल गोडे दर्द होंदे ने, नहीं देर बैठिया नहीं जाता। एक बंदे ने पूछा, तुसी अजकल शराब नहीं पींदे, तुसी तो रोज़ पींदे सी। कहता मैनू डॉक्टर ने कह दिता सिंगल ड्रॉप ऑफ एल्कोहल इज़ पॉइजन फॉर यू, इस करके मैनू छोड़नी पई। जितने भी अवगुणी ख्याल होंदे ने, इन्हां दा सुभाव सानू दरअसल छड्डना ही पैंदा है। 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए। इतनक खटिया गठिया मटिया, इतनक खटिया गठिया मटिया, संग न कछ ले जाए, संग न कछ ले जाए। मन अपनी तूती वजांदा रहता है, मन नूं अपना अवगुण दरअसल छड्डना पैंदा है। इहदे कोल गंदगी दा, कूड़े ख्यालों का असैट है। ये वो वालिया आदतां सुभाव हंडाण दा दिल दा करदा है, इस करके सच नूं इग्नोर करदा है, सत्संगत नहीं करदा है। जेकर ये सच सुन लवे, इसनूं जाना ही पैंदा है। 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए। इतनक खटिया, जो इन्हें गंद इकट्ठा किया सी, उन्होंने काचा तन कहते हैं, अवगुणा के ख्यालों का खट्टी। इतनक खटिया गठिया, गठिया होंदा गंठड़ी, जिहड़ी असी सिर ते बंदे लोग अवगुणा की बन्ने गंठड़ी, गुण ना विहाजै कोई। जदों असी चंगे गुण की विहाज नहीं करते हाँ, व्यापार नहीं करते हाँ, तो अवगुण इकट्ठे करते हैं लोग, अवगुणा की बनना गंठड़ी। पर गुरु पातशाह कहते हैं, जेते अवगुण तू करदा है, तेते गली जंजीर, उतना तेरे उत्ते जमा की फाई पैंदी जाती है। नानक अवगुण जेतले, तेते गली जंजीर, फसदा जाएगा। अवगुणा का व्यापार करने की बजाय तेनू चंगे गुणा का व्यापार करना है। 4 दिन अपनी नौबत चले जाए। इतना खटिया गठिया मटिया सब मिट्टी। जदों मैं अवगुण इकट्ठे करता हाँ, मेरे मन की उस अवस्था नू माटी कहते हैं। माटी का क्या तोप है स्वामी? असी माटी होंदे हाँ। इस माटी नू जदों चंगे गुण देंदे हां, तां असी माटी तो कंचन बनते हैं। इस शरीर हड मास के शरीर नू गुरबाणी च माटी नहीं कहा गया। मेरे मन के थॉट प्रोसैस नू माटी कहा गया है। जदों उसने अपने आप को तराशिया नहीं, जदों उसने अपने आप को घड़िया नहीं,
अवगुणा दे नाल घड़ के उसनूं रब जी दे मंदिर दे अंदर स्थापना उसकी मूर्ति नूं नहीं मिलती, तो गुरु पातशाह कहते ने थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान। जे सतगुर दी मत दे गुण लै लवें तां रब जी दे मंदिर दे अंदर तेरी स्थापना हो सकती है। मनुख ने इस ख्याल नूं बाहरों समझिया ही नहीं, मनुख ने एक मिट्टी गारे दी मूर्ति बनाई और चार दीवारों के अंदर उसकी स्थापना कर दी। गुरु पातशाह कहते ने तू रब जी दे मंदिर दे अंदर तेरे मन की स्थापना मूर्ति हो सकती है जेकर इस मूर्ति नूं इस माटी नूं तू घड़े चंगे गुणां नाल तराशे। थापिया ना जाए, तेरे मन की मत नाल नहीं तू थापया जा सकता, तेनों अपने अवगुण छड्डने पैणगे। इन्हां अवगुणां नूं लैके तू अंदर नहीं जा सकता। अंदर किस तरह जा सकते ने? पंच प्रवाण पंच प्रधान पंचे पावै दरगाह मान। अंदर दी दरगाह अंदर चंगे गुण लैके मान प्राप्त करीदा है। उथे खोटे सट्टियां खरे कीचे शाबाश। चंगे गुणों नूं लैके अंदर जा सकता है। चंगे गुणों का व्यापार करया कर। इतना खटिया गठिया मटिया संग न कछ ले जाए। खोट लैके तू अंदर नहीं जा सकता। यू कैन नॉट एंजॉय द हैप्पीनैस। नानक भगता सदा विकास वाला खेड़ा हैप्पीनैस तेनों नहीं प्राप्त होएगी। तेनों हैप्पीनैस सदीवी लैनी है। नानक भगता सदा विकास, हमेशा की हैप्पीनैस डज नॉट मीन असीं बत्ती दंद इंज कट के बैठे रहते हैं। हमेशा की हैप्पीनैस का मतलब होता है खेड़े विच रहना, सुख दुख विच बैलेंस्ड रहना, मान अपमान उस्तत निंदा हेट्रेड निंदा चुगली, हम ख्याली मिलन तो खुश ना हम ख्याली मिलन तो उदास, ये सारे वेले बैलेंस्ड रहना ये विकास की अवस्था कहलाती है। जिथे जाइए जगत में तिथे हर साई हमेशा विकास की अवस्था रही। मेरे रब जी मेरे नाल ने। दुख कणों जब होते दूर दूर समझता ही नहीं तो दुख नूं लगता नहीं है। मन उत्ते जैसी रंगत चाढ़ी अज होला महला विच असी अटैक कर रहे हैं अवगुणा दे रंग उत्ते और चंगा रंग चढ़ान लग्या। ये मन रोड़े रंगले प्यारे तू सच्चा रंग चढ़ाए। ये जिहड़ा असी राम रंग कदे उतर न जाए वाले असी टॉपिक नूं होला महला ते लैण दा जतन करदे हां। जैसी संगत वैसी रंगत, और जैसी रंगत जैसा रंग चढ़ता है वैसा मनुख का थॉट प्रोसैस बनता है। इसका मतलब बाहरले रंगां की गल नहीं चल रही है। मैं एक गुलाल या एक हरा नीला पीला रंग लै ला वो गल ते ला दियाँ, इट मेक्स नो सेंस। मैं एक दीवा मेरे सामने लिया, मैं दीवे उत्ते हाथ इंज करके अपने उत्ते इंज ला लवां, फिर दीवे उत्ते हाथ रख करके मैं बच्चों के मत्थे ते ला दियाँ, इट मेक्स नो सेंस। जदों तक मेरे मन का थॉट प्रोसैस ठीक ही ना किया जाए। अज तो 8-10 साल पहला जो मैं कंप्यूटर खरीदिया, मेरा कंप्यूटर ते स्काइप काम नहीं सी करता। नौजवानों वास्ते जिहड़े कंप्यूटर चलाते हैं, मैं सांझ कर रहा, वो मेरा स्काइप उहदे काम ना करे। जिस बंदे को मैं लिया सी उहदा नाम सी लिवलीन सिंह, साडी लिविंग ट्रेजर की वैबसाइट को मॉडरेट करते हैं। मैं लिवलीन सिंह जी मेरे कंप्यूटर ते स्काइप काम नहीं करता। कहता वीर जी तुसी ऐ करो, तुसी ऐ करो, तुसी सैटिंग्स जाओ, इंज करो। मैं सब कुछ करता गया, अल्टीमेटली नहीं चलिया। लिवलीन मैनू कहता है जिस पीटर ने कंप्यूटर वेचिया सी मैं उसनूं तुहाडे नाल कॉल ते मिलांदा हाँ। पीटर मैनू कहता तुसी सैटिंग्स जाओ, फलानी जगह जाओ, फलानी जगह, फलानियां चीज़ां अपने कंप्यूटर तो डिलीट करो। जदों तक कन्फिगरेशन जाके और सैटिंग्स जाके वो वालियां गलत चीज़ों को डिलीट नहीं किया गया, मेरा कंप्यूटर काम नहीं सी करता। गुरु पातशाह ये साइकी सारी दुनिया देते हैं। तू बाहरों तीरथ बरतर दान कर, मन में तेरे गुमान सब कुछ करता है। जब तक तेरे मन की कूड़ मन की मैल जदों तक डिलीट नहीं ना होएगी ता तक धर्म दियां सारियां गल्लां उत्तों ही उठ जाएगियां। कर्म कांड तेरा कुछ नहीं सवार सकनगे, बल्कि कर्मी सहज ना उपजे। तेनू सहज नहीं आएगा। कर्म कांड पिया कर, कर्मी सहज ना उपजे। विण सहजे सहसा ना जाए तेरा डर, तौखला फिकर चिंता नहीं जाएगा। न जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए। सहसा जाएगा नहीं, सह जाएगा नहीं।
उत्तों एक और गल वापर जाएगी, सहसे जियो मलीन है, मन होर मैला हो जाएगा, डर हो डरपोक हो जाएगा, सहसा चिंता फिक्र मत दे जान के। पहला तेनों मन उत्तों कूड़ उतारनी पेगी। इस करके जपजी साहब की बाणी पूछा गया है कि सचियारा हुई है कि कूड़ा टुट्टा पाल, कूड़ की मैल नूं किवें उतारा जाए। 38 पौड़ियां विच उस कूड़ की मैल नूं उतारन की यात्रा कराई गई है। यूनीक एक लड़ी है जिहड़ी सानूं समझाती पई है कि अपनी कूड़ किस तरह उतारीदा है। सो असी अपने मन उत्ते नोटिस करांगे रंग किहड़ा चढ़िया होया है। जैसा रंग कुसुम का तैसा ही संसार। ये हुण बाहरली दुनिया की गल नहीं चल रही है। संसार मीन्स मेरा थॉट प्रोसेस। जैसा तू अपने मन उत्ते रंग चढ़ाएगा और तू रंग चढ़ाना जानता नहीं है, तू रंग चढ़ाएगा कच्चा। कच्चे रंग नूं कसुंभ कहंदे ने। कसुंभ मीनस टैंपरेरी। खास तौर पर है जिहड़े स्प्रिंग्स के दिन आते हैं, इन्हां विच असीं देखते हैं कि कुछ फुल ऐसे होंदे ने वो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, खुशबू नहीं होती। उन्होंने हाथ लगाओ, उन्होंने पंखड़ी तो रंग उतर जाता है और वो 3 या 2 हफ्तियां वास्ते कायनात ही उगते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। ये सारिਆਂ ਨੂੰ कसुंबे दे फुल कहते हैं। जितने भी रंग कच्चे होन और खुशबू भी ना होवे, कसुंब जितने अवगुणां दी मैं सांझ करता हाँ, इन्हां विच खुशबू नहीं होती। इन्हां विच धूप लियाण लो, पवन छवरो करे दी बिल्कुल भी कोई कीमिया नहीं होती। ये कम नहीं आते ने। ये अवगुणा दे काचे धन का जिहड़ा तू थॉट प्रोसैस बनाया ना, इनू संसार कहते हैं। जैसा रंग चढ़ेगा वैसे असी बनते जाएंगे। जे तू कच्चा रंग चढ़ाएगा तो कच्चा बनेगा। और असी सारे फास्ट फूड खाण दे आदि हो गए हाँ। फास्ट फूड तो अजकल बनया पिछले 10, 15 या 20, 50 सालों तो चालू होया है। हज़ारां सालों तो मनुख नूं धर्म का फास्ट फूड खाण की आदत पई है। क्विक इस तरह कर लो, कुछ कोई कर्म कांड कर लो, कोई तीरथ से चले जाओ, कोई 40 दिन चले जाओ, कुछ नंगे पैर चले जाओ, कोई ठंडे पानी ना नहा लवो और इस तरह कुछ कर करा के या मंथली कोई संग्रांद मस्या पूर्णमासी मना लो या कितने इशनान कर आओ तो वो सोचता मेरे मन की मैल दूर हो जाएगी। इस तरह मैल नहीं दूर होगी। जल के मज्जन जे गत होवे नित नित मेंढक ना आवे, तीर्था ते जाएगा तां भी तेरी मैल दूर नहीं होएगी। ए फास्ट फूड वाली गेम नहीं। तेनू सहजे सहजे हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत न जाई। तेनू ये सहज का संतोख का भोजन बड़े आराम के नाल बनाना है और इसनू पका के खाना और सारी उम्र खाना है। पक्का रंग चढ़ाना है। कहते ने जैसा रंग कुसुम का तैसा ये संसार। ये संसार बाहरली गल नहीं चल रही है। इस गल नूं बार बार दृढ़ करते हाँ कि गुरमत और मनमत विच फर्क की होता है। गुरु नानक साहब की फिलॉसफी जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज की गई है, उस फिलॉसफी तो पहला जिहड़ी फिलॉसफी सी कोई भी, वो सारिया फिलॉसफियां कहदियां ये दुनिया झूठ है, पति पत्नी झूठ है, टब्बर झूठ है, शरीर झूठ है, सृष्टि झूठ है। उन्होंने हर चीज़ को झूठ 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 कह के सबको छोड़ दो, त्याग दो, भाग जाओ यहाँ से, जंगल में चले जाओ, रिनाउंसिंग सिखाई। शादी मत कराना, ब्रह्मचारी बन के रहो, सेलिबेसी में रहो, सोने को हाथ मत लगाना, पत्नी को हाथ मत लगाना, मकान को हाथ मत लगाना, पैसे को हाथ मत लगाना, रजिस्ट्री को हाथ मत लगाना। ये कपड़े भी माया है, शरीर भी माया है, पत्नी भी माया है, बच्चे भी माया है, काम धंधा भी माया है। उन्होंने इस तरह कह के सानू हठ जोग जोगियां वाली मत दी टोन ते क्या सब कुछ छोड़ दो। मैं बड़ा हैरान होया, बाणी च आया, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। रब जी ने धरती बनाई है धर्म कमाउण दी पाठशाला। रब जी सृष्टि साजदे ने, सृष्टि विच आप मौजूद हैं। ये सृष्टि कैसे झूठ हो सकती है? सृष्टि झूठ नहीं है,
इते चंद सूरज तारे धरती भैवी सूरज भैवी चंद को करोड़ी चलतनाथ सारे कुदरत के नियम विच रब जी की नियमावली के अधीन चलते हैं। द लॉज ऑफ नेचर इज़ द विल ऑफ गॉड, और सारी कुदरत विच कुदरत करके वसिया सोए रब जी मौजूद हैं और बलिहारी कुदरत वसिया गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट। असी इसनू कैसे झूठ बोले जा रहे हैं? सृष्टि झूठ है बोलते हैं, भगवान ने सृष्टि बनाई है और सृष्टि झूठ है। अगर सृष्टि झूठ है, प्रोडक्ट झूठ है, तो प्रोडक्ट वाला मालिक भी झूठा हुआ, पर रब जी तो झूठे नहीं है। भगवान गॉड इज नॉट झूठा, उसकी क्रिएशन भी झूठी नहीं है। पर यहाँ पर जो मेरा मन का थॉट प्रोसेस है, वो जब कुछ गलत सोचता है, कच्चे ख्यालों का रंग सोचता है, तो उस सोच नू जग रचना सब झूठ कहते ने। जग रचना मेरे मन की बनाई रचना। इस सृष्टि नू झूठ नहीं बोलते ने। सृष्टि बारे तो गुरु साहब कहते ने, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत्त। जपजी साहब पढ़ते हैं, सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई। रब जी सच्चे ने और उन्होंने सारी न्याई, सारी सृष्टि, सारी नियमावली सच्ची है। इहदे विच साडे सारे शरीर भी रब जी के नियम अनुसार चलते ने। जे रब जी के नियम अनुसार ना चलन, डॉक्टर की बोली में हमको बीमार कहा जाता है। डॉक्टर भी दवाइयां दे के सानू वापस 98.6 टैंपरेचर ते लैके आंदा है, क्योंकि 98.6 कुदरत का नियम है। कुदरत दे नियम ही चीज जिहड़ा बच्चा मां दे पेट विच उल्टा होंदा है, मैडिकल साइंस कहती है दैट इज़ द बेस्ट प्रेगनेंसी एंड दैट इज़ द बेस्ट डिलीवरी। पर धार्मिक दुनिया वाले ने कहना शुरू करता, ओ मां दे पेट विच तू पुट्ठा टक गया होंदा। कोई पुट्ठा नहीं कहलांदा, वो बच्चा इज जस्ट फ्लोटिंग इन द मां दे वूम विच और उहदे वास्ते स्वर्ग होंदा है। लेकिन जेड़े पुट्ठे नहीं होंदे ने मां दे पेट विच, बल्कि वो डिलीवरी खराब हो जाती है, उन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ होती है या उन्होंने ऑपरेशन कराना पैंदा है। सो मैडिकल साइंस भी कहती है ये तो कुदरत का नियम है। नियमावली विच रहना, कुदरत की नियमावली सच्ची है। तेरे घर सदा सदा है न्याऊ। रब जी के नियम सच्चे ने। नियमां दे अगेंस्ट जदों मैं अवगुणां नूं इकट्ठा करके जींदा, उन्होंने काचा धन कहते हैं, कसुंभ का रंग कहते हैं। नियम सदीवी ने, अटल ने, इनएविटेबल ने कुदरत के, उन्होंने साचा धन कहते हैं, पक्का रंग कहते हैं, मजीठ का रंग कहते हैं, इनएविटेबल। जदों आएगा जन नानक ये खेल कठिन है। कठिन का मतलब ये नहीं होता कि धर्म के मार्ग पर चलना मुश्किल है। कठिन का मतलब होता है करड़े, खरे, सच्चे। रब जी का नियम कठिन मीन्स एज स्ट्रोंग एज स्टील। इसनू ना तोड़िया जा सकता, ना मोड़िया जा सकता, ना इन्हों चेंज किया जा सकता है। हर किसी को रब जी के इनएविटेबल होते हैं, पक्के सख्त ठोस होंगे ने, इन्हों कोई नहीं चेंज कर सकता। इसनू कहते हैं जन नानक के खेल कठिन, स्ट्रोंग, सख्त, ठोस, पक्के। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देख के नियम चेंज नहीं होंगे ने। कोई रब जी के बारे जे सब मिल के आखण पाए, वड्डा ना होवे घाट ना जाए, कोई रब जी का ना लवे ना लवे, रब जी अपना नियम चेंज नहीं करते ने। आस्तिक नास्तिक वास्ते बराबर का रखते हैं। कुसुंभ का कच्चा रंग और मजीठे का पक्का रंग। कसुंभ के रंग विच असी रंग चेंज करते हैं। फलाना एकदम हिपोक्रेट है, गिरगिट वांगू रंग बदलता है। जदों मैं हिपोक्रेट होंदा हाँ, मैं घर होर, गुरुद्वारे होर, बिजनेस की दुनिया च होर, पति के सामने होर, पत्नी के सामने होर। जेड़े चार धर्मी मैनू मिल जान, उन्होंने सामने मैं बड़ा शरीफ। जे चार बदमाश मिल जाता है, मैं उन्होंने सामने बताता हूँ हम किसी से कम नहीं है। ए जो असी करते हैं, इनू साइकोलॉजी वाले डॉक्टर्स
इस चैप्टर का नाम रखते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। बई जगह देख देख के चेंज होते रहना। अनस्टेबिलिटी, कबू जीड़ा ऊप चढ़ा था कबू जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिर ना रहता चारे कुंडा पाले। अनस्टेबिलिटी कसुंबे दा रंग कहलाती है। बारले चार गुलाल लगा ले फिर धो लिया, कईयां दा उतरिया कईयां दा नहीं उतरिया, कईयां ने क्या उतरना नहीं चाहिए उन्होंने पेंट ला दिता, कईयां ने चिक्कड़ ला दिता, कईयां ने कुछ ला दिता। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਚੜਾਣਾ, ਪਰ ਮਨ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਗੁਣਾ ਦਾ, ਡੀਮਨ ਥਾਟਸ ਦਾ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਵਾਈਸਿਸ ਦਾ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ कबू जीड़ा ऊप चढ़ता है कबू जाए प्याले, लोभी जीड़ा थिर ना रहता है, स्टेबिलिटी नहीं आती है। चारे कुंडा पाले, मनुख चारों पासे भटकता रहता है। इस तो बाद अगली पंक्ति, मेरे रमैये रंग मजीठ का, असी जैसा रंग कसुंभ का तैसा ही संसार, जमा दी बुद्धि वाला रंग कच्चा होता है। कसुंभ की गल की, रमैये का रंग मजीठ का होता है। रमैये मीनस गॉडली क्वालिटीज का रंग पक्का होता है। गॉडली क्वालिटीज के रंग वाला हिपोक्रेट नहीं होएगा, वो कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं रहेगा। मंदिर में और, गुरुद्वारे में और, ऑफिस में और, बिजनेस की दुनिया में और, घर में कुछ और नहीं। वो बंदा बंदा वेख के चेंज नहीं होएगा। ਇਹ ਹੁਣੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਮਜਲੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਇਟ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਨੀ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਰਵੇ? ਉਹ ਟੇਕ ਇਟ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਅਵਗੁਣ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਅਵਗੁਣਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ बैकुंठ लेके जाना, चल रे बैकुंठ तुझे ले तारो, हिचे तो प्रेम के चाबुक मारो। पर मैं अपनी घोड़ी नूं दूजे कार गलत चलाते कि असीं अपनी कार गलत चलानी शुरू कर देंगे। जे कार दूजा गलत चला रहा, असीं अपनी कार गलत नहीं चलाते, राधा अरदास करते हैं रब जी इहनूं सुमत बख्शो। पर जे असीं उहदे दा वांगू गलत कार ना चलाइए और उहनूं गालां कड्डीए तो गलत कार चलाने के बराबर ही है, इफ यू आर डिस्टर्ब्ड। सो असीं सीखते हाँ कि कसुंबे के रंग और मजीठ के रंग में फर्क की है। चंगे गुणा की प्रैक्टिस करते रहना, मजीठ का रंग मन उत्ते चढ़िया। अवगुणा का सांझ कर ली, कच्चा रंग चढ़ गया। जदों कच्चा रंग चढ़ जाता है तो असी दुनिया नूं देखण विच बड़े शरीफ लगते हाँ, पर जदों साडे नाल कोई बिहेव करता है तो पता लगता है साडे कोई नेड़े आवे, जदों साडे घर कोई आवे तो राह पिया जानी है, जवाब पिया जानी है। इस करके लोगों को विआह शादी तो बाद पता लगता है ये प्रेमी कैसा निकला। विआह तो पहला बड़ा अच्छा लगता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, शादी के बाद पता लगता है कुड़म कैसे निकले। वो जी असीं तो इन्होंने गुरुद्वारे आंदे वेख्या सी, असीं तो सुनिया सी इन्होंने अमृत छकिया है, वो जी असीं सुनिया सी ते बड़ी सेवा करते सन, ये बड़ा पाठ करते सन, पर इन्होंने दाज के ना हेठा साडी बेटी नूं साड़ दिता, इन्ना दुखी करते हैं सानू। जो राह पिया जानी है, जवाब पिया जानी, उन्होंने कहते हैं सिमल रुख सराए रात दीरगत मुझ ओए जे आवे आस कर जाए निरासे कित, मेरे नेड़े आए फल फिक्के फुल बख बके, कम ना आवे पट। मेरा कोई भी उन्होंने बाहरली दिखावा किसी काम नहीं आया, बल्कि बड़ा बिटर एक्सपीरियंस होया। रमैये का रंग पक्का होता है, रमैये का रंग रजा होता है, हुक्म होता है, नियम होता है, पाना होता है। रमैये के रंग चेंज नहीं होते ने, जिन्हां दे चेंज होते हैं उन्हां दा जीवन सुखी नहीं रहता, वो अपसैट हो जाते हैं। तो जे तू जीवन सुखी करना है ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, कपड़ रू
सुहावना कपट सुहावना छड़ दुनिया अंदर जाना। तेरा सुहावना हो सकता है, जीवन कपड़ सारी लाइफ सुहावना हो सकती है। तू है दुनियादारी दिखावा पाखंड छड़, ए हिपोक्रेसी छड़, ए कसुंभ का रंग होता है। रमैये का रंग पक्का होता है, अंदर जाना। अंदर जाइए रब जी के गुण मिलते हैं। इंट्रोस्पैक्शन करिया कर, अंदर की आवाज़ सुनिया कर, अंदर की आवाज़ पक्का रंग है। मन की मत टैंपरेरी होती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डिसिप्लिनड नहीं रहता। असी अमीर गरीब जात पात धर्मी अधर्मी मेरा तेरा इस तरह देख देख के सब जगह अपना डिसिप्लिन चेंज कर देंगे हैं। एवं अपने आप को कहते हैं वेरी डिसिप्लिनड, लेकिन लोगों को वेख वेख के साडा सिस्टम चेंज होता जाता है। असी मूँह वेख के गाल ते थप्पड़ मारते हैं, असी बंदे नूं तो थले तक वेख के उन्होंने सत श्री अकाल बुलाते हैं, किसी को घर बुलाते हैं ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਦੇ ਤੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਆਇਆ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ कसुंभ का रंग है। निंदा नफरत ईर्खा कम्युनल हेट्रेड, ये सब कसुंबे के रंग के अंदर आते हैं। जिस इंसान नाल कल तक प्यार करते सी, अज उहदे नाल साडा काम नहीं सरदा या साढ़े ख्यालों का लोड़ का नहीं रहा, नफरत शुरू हो गई। कल तक मेरा दे नाल काम निकलता सी, तुसी मेरे भरा, अज मेरा काम नहीं निकलता, असी कुछ लगते ही नहीं। कोई बंदा 99 साढ़े काम करे सानू चंगा लगता, एक दिन साढ़ा काम ना करे सानू शिकायत शुरू हो जाती है। असी कहते उहदा दिमाग अजकल फिर गया कि कसुंबे का रंग मेरे मन उत्ते चढ़िया होया, मैं थैंकलैस भी हाँ। नफरत करदियाँ, वैर करदियाँ, कम्युनल हेटेड करदियाँ, निंदा करदियाँ, ये सारे कसुंबे के रंग ने। मेरे रमैये रंग मजीठा कौर रविदास चमार जी कहते हैं मेरे रमैये का पक्का रंग है, ये हमेशा कहते रहना है। और यह मैं लैके चलिया हाँ शब्द पॉजिटिव सेंस है, क्योंकि राहुल कह रहे हैं को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रहे। इसका मतलब रविदास जी ने अपने कैरियर विच अपने थॉट प्रोसैस के विच रब्बी गुण सांभे हुए ने, उन्होंने लैके जा रहे हैं। कहते ने मैं लैके क्यों चलिया वां, घट अव घट डूगर कणा एक निर्गुण बैल हमार। साडी जिंदगी ना प्लेन टैरन नहीं है। टैरन होंदा जिदे ते वो कैट वॉक करते हैं, मुंडे कुड़ियाँ ड्रैस पा के फैशन शो करते हैं, इस तरह टुरते जाते हैं, उन्होंने टैरन कहते हैं। किसी भी इंसान की जिंदगी इस तरह प्लेन टैरन नहीं है। ਜਿਹੜੇ अंतर धर्मी विआह करा लेंदे ने, विआहता जोड़ियां दी भी जिंदगी प्लेन टैरन नहीं है। तो अमेरिका का एक राइटर लिखता है ਜਿਹੜੇ एक रिलीजन वाले दूजे रिलीजन वाले नाल विआह करा लेंदे ने, उन्हां दी जिंदगी होर उबड़ खाबड़ बन जाती है, होर डिफिकल्ट बन जाती है। इस करके इंटर रिलीजन मैरिज कराने विच प्लेन टैरन नहीं है, वो होर डिस्टरबेंस हो जाएगी। पर रोज़मर्रा की जिंदगी विच साडे जीवन है जिहड़ा घट अव घट डूगर कणा, घट होंदा अंदर की गल, अव घट होंदा बाहर की गल। जां असीं इंज कह सकते हैं कि घट अव घट मेरे थॉट प्रोसैस दे नाल जो बाहर मैनीफेस्ट होंदा है, मेरी जिंदगी डिस्टर्ब रहती है। डूगर होंदा पहाड़ी रस्ता। जदों असीं शब्द पढ़दे आ सज्जण सही नाल मैं चलदिया नाल चलां, जिथे लेखा मंगे तिथे खड़े दिसन, उस शब्द विच कहंदे ने अंधले भार उठाया। तू हिपोक्रेसी करदा है, बार बार चेंज होंदा रहंदा है। अंधले भार उठाया है, तू हिपोक्रेसी दे अवगुणा दा भार सिर ते चुक्या है। अंधले भार उठाया और है भी तू अन्ना। डूगरवाट बहुत, डूगरवाट होंदा डिफिकल्ट रास्ता, पहाड़ी रास्ता, अंधा भी हो, रास्ता भी पहाड़ी हो, कदम कहाँ पर रखना पता नहीं है, और सिर के ऊपर वजन भी उठाया हुआ, और वजन भी गलत चीजों का उठाया हुआ है। लोग अवगुणा की बनना है गंठड़ी, लोग अवगुण बड़ी जल्दी छेती छेती सीखते हैं।
सिखाने नहीं पैंदे ने। कदे भी गुरुद्वारे के बाहर पोस्टर नहीं लाना पैंदा, साध संगत जी अजकल छोटियां कमीज़ों के बदले ए लाइन वाली वड्डी कमीज़ का रिवाज हो गया है। आप ही पता लग जाता है, फैशन चेंज हो जाता है, सिखाना थोड़ा ना पैंदा है। सिखाना नहीं पैंदा कि सिर ते पल्ला किवें लाईदा है, सीख ही जाते हैं। सिखाना नहीं पैंदा कि अश्लील कपड़े कैसे पहनते हैं, सीख ही जाते हैं। सिखाना नहीं पैंदा, अजकल व्हाट्सएप पे आ रहा है 1.5 साल 2 साल का बच्चा मसा खड़ा हो रहा है और पूरे कपड़े ला के नच बलिए वाला डांस कर रहा है। सिखाना नहीं पड़ता। आओ हुण आते जाते हैं, आजा नच लै और साडे नाल रोगे ऐश करोगे, ऐ सिखाना नहीं पैंदा। सारी गंदगी बड़े आराम नाल सीखी जा सकती है, पर पक्का रंग चढ़ाने वास्ते बड़ा मुश्किल होता है। इस करके लोगों को बाहरला कच्चा रंग, बाहरली भंग पीना, बाहरली शराब पीण का, होली मनाने का बड़ा शौक होता है। हर कोई उसको मना ही लेंदा है। बच्चे को बेटा बैठो और पाठ करो, उन्हें मुश्किल लगता है। उसको बोलो गुब्बारे ले दें, पानी भर दें, ऊपर से राह जाते को मारना, और जिसको मारो उसका कान के ऊपर पजे, उसके कान का पर्दा फट जाए, और जब वो साइकिल या स्कूटर से गिर जाए तुम हंसना, वो हंसेगा। सीखना नहीं पैंदा। अपने अवगुणा दे बैल नूं असी जदों टिकाणे नहीं लांदे, मानो मेरा बैल एक टांग ते खड़ा है। जदों मेरा बैल एक टांग ते खड़ा होए ना, तां ये टुर नहीं सकता है। इस अवस्था नूं कलयुग की अवस्था कहते हैं। द्वापर त्रेता विच 2 या 3 टंगा ते खड़ा सी, पर मेरा बैल प्रॉपर स्टेबल अवस्था विच खड़ा हो जाए नूं सतयुगी अवस्था कहते हैं। इन्ना चंगे गुण तां सीखे जाते हैं। अज के शब्द अनुसार घट अवघट डूगर कणा एक निर्गुण बैल हमार। जदों अपने आप नूं निर्गुण समझिए, निर्गुण होता है अवगुणी सुभाਅ नूं महसूस करना कि मेरे कोल गुण कोई नहीं है। ते रब जी की क्या बख्शिश है कि जदों रब जी के मार्ग ते टुरो, नानक निर्गुण गुण करे, जिन्हां कोल गुण कोई नहीं है। जिहड़ा मनदा है मेरे पास क्वालिटी कोई नहीं है, उन्होंने वो गुण देंदे ने। पर जिहड़ा पहला ही मान के बैठा हमको सब कुछ मालूम है, वो की करता है? मन जाने सब बात, मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की मुश्किला, हाथ दीप कुएं पर, हाथ दीप कुएं पर, मन जाने सब बात। जदों मन ये मान लेंदा मेरे को सारी अक्ल है, सब कुछ मैं जानता ही हूं, मन जाने सब बात, अवगुण शुरू हो गया। बिकॉज तूने माइंड का दरवाजा बंद कर लिया, खोल कपट गुर में लिया। तू नहीं चाहता, तू गुरु दे दर्शन चाहता ही नहीं है, तू गल सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि तेनू भुलेखा पै गया मैं सब कुछ जानता हाँ। तेरा बैल जिहड़ा है ना निर्गुण नहीं बनिया। सो जदों मेरा बैल मन लवे, मन नू बैल बनाना है, मन नू बैल बनाना है और एक्सेप्ट करना है कि मेरे को गुण कोई नहीं है। बड़ी अच्छी अवस्था है कि मेरा बैल निर्गुण है। घट अवघट डूकर कणा, मेरी जिंदगी का रास्ता बड़ा मुश्किल है और मेरा बैल है, उहदे कोल गुण कोई नहीं है। होप शुरू हो गई कि अगर गुण नहीं है तो गुण लिया जा सकता है। पर जेड़ा समझे मेरे को गुण है और गुण पूरा अकल दवानी चवानी ना होवे, नानक सेनर असल खर, वो खोते होते हैं, डंकी होते हैं, स्टब्बन होते हैं। नानक सेनर असल खर जे बिन गुण गर्व करत,
पास अक्ल तेले दी ना होवे और फिर भी कमांड करे, मैनू सब कुछ पता है। हुण अवगुण ही करता जाएगा, जीवन कुशल नहीं बनेगा। मन जाने सब बात जाना थी, अवगुण करे काहे की कुशलात। अब भाई साहब कुशल कैसे हो सकते हो? हाथ दी कुएं पर है, तेरे हाथ में दिया और कुएं गिर रहा है। अंदर दीवा जगदा है और असी खूच डिगदे ही हाँ अपनी जिंदगी दे। कहते रमैये सो एक बेनती मेरी पूंजी राख मुरार। पूंजी होता है मैं अवगुणा की पूंजी इकट्ठी की है तो मेरी वो पूंजी है। पर ये कहते अपने मेरी पूंजी राख मुरार। पूंजी सारे शब्द विच है हंबलनेस, सहज, पेशेंस, टॉलरेंस। चंगे चंगे गुणों नूं कोल रख के बचा के रखना, उन्हां दी प्रैक्टिस करनी। संत ना छाड़े संत ही जे कोटक मिले असंत। सो चंगी पूंजी नूं संभाल के कहते रमैये सो एक बेनती मेरी पूंजी राख मुरार। मुरार की होंदा है? मुर दैंत कहते ने। दैंत दा मुर दैंत दा मतलब होंदा है हौमै, हंकार नूं मारन वाली अक्ल। सो ये मेरी पूंजी राख मुरार। बेनती किस वास्ते? रमैये स्यों, रब जी की बेनती है, रब जी मैनू विजडम दो ताकि मैं अपनी हौमे को मार सकूं। जिहड़ी विजडम दिती जाए और उस विजडम के नाल हौमे नू मारिया जाए ना, उसनू मुरार कहते हैं। मुरार हंकार नू मारन दी अक्ल। रमैये स्यों मेरी बेनती, रमैये स्यों एक बेनती मेरी पूंजी राख मुरार। सो असी सतगुर दे प्यू दादे दे खजाने तो रब्बी गुण गॉडली क्वालिटीज़ वाइसिस मॉरल्स आइडियल्स सीख के उन्हों की जो प्रैक्टिस करते हैं पूंजी रखना कहते हैं। तो हंकार वर्सिस रब, हंकार जम, जम वर्सिस नम्रता। सो जम ख्याल मनु कहेंगे अपना दिखावा करो, धर्म का दिखावा करो, पैसे का दिखावा करो, जात का दिखावा करो, अपनी हर चीज का दिखावा करो। हंकार, अपनी हंकार जगत जलिया, जलता रहेगा भाई तू अपनी ईगो में। इसके बदले में भगवान जी मीन्स सत, सत मीन्स संत, संत मीन्स आइडियल्स, आइडियल मीन्स इस शब्द इच नम्रता, हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी। बैल जदों निर्गुण बनता है तो इस अवस्था में असी समर्पण करते हैं और इस अवस्था को कहते हैं अद्वैत की अवस्था। अद्वैत पद असी समझिया सी नानक पद के अर्थ ही अद्वैत होंदे ने। और जदों अद्वैत होंदे हाँ तो साडी अवस्था बनती है प्रभ तुम ते लैना तू मेरा गहना। उन्होंने लहना की अवस्था कहते हैं। तो लहना की अवस्था में जो तू मेरा गहना की वो मत देंदे ने। गहना चंगे गुणों का सुभाव जो असी अपनी प्रैक्टिस करते हाँ वो श्रृंगार जिहड़ा कीता जाता है उन्होंने अंगद कहते हैं। और उसकी हमेशा वास्ते विकारां नाल राखी होती है, इस करके वो हमेशा वास्ते अमरदास होंदा है। और जदों इन्हां दी हमेशा दी सच की संगत के सरोवर च रहांदा रहिंदा है, रामदास कहते हैं, तां ओहदी जिहड़ी अर्जुन की अवस्था बनती है उहदे विच उसदा मन भट बाणी उजारदा है। बैल निर्गुण होया और डुअलिटी छड़ दी। घट अवघट डूगर कणा, घट अवघट जम डंड मुरार अवगुण गंठड़ी कसुंभ का रंग। हों बंजारो राम को सहज करो व्यापार। हुण शब्द दे विचकारों कीमती पॉइंट निकल के आया सहज। इतना वड्डा शब्द उच्चारण किया गया और उहदे विचकारों सहज दे नाल नम्रता और हंबलनेस, सहज दे नाल टॉलरेंस और पेशेंस को हो बंजारो राम को। हुण जिहड़ा भी इंसान रब्बी गुणा का व्यापार करता है वो इस दे वणज व्यापार विच सहज सीखता है। हो बंजारो राम को सहज करूं व्यापार, मैं राम नाम तन लाद्या, मैं चंगे गुणा का धन लद्या। यही तो राहो चाको बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए, मेरा कैरियर, मेरा थॉट प्रोसैस उहदे विच अज दे शब्द विच है सहज। सहज रंग रच रहा एनिस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाह गया। बाबा मन मत वारो नाम रस पीवै। नाम रस पीन नाल की होंदा है, उन्होंने फायदा की होंदा है? सहज रंग रच रहा वो हमेशा स्टेबल इको जिहा हो जाता है।
और सहज का रंग जो चढ़ जाता है, अंदरों बाहरों इक्को जिहा हो जाता है। जो असी पढ़ांगे जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ ते भले संसार, इहदा यह अर्थ नहीं है कि जेडे अंदरों चंगे ने बाहरों वो गलतियां कर जाते हैं, इंज नहीं है। 50% होएगा। जियो मैले बाहरों निर्मल गुरमति च प्रवान नहीं है। जियो निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियो ता निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाई, मनशा सत समाणी। जदों अंदरों बाहरों खरे सच्चे होंदे आ तां इस पंक्ति दे अर्थ बनते ने जिन पट, जिनके पास सच की नॉलेज, विचार, पट रेशम खरा सच्चा प्योर उन वाली, जिन्हां कोल अकल आ जाती है प्योर घ्यो वाली, जिन पट अंदर बाहर, अंदर और बाहर दे रारे नूं सियारी है, अंदर बाहर वो अंदरों ते बाहरों, जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़, गुद्दड़ होंदा वो सच दा चोला पै लैंदे ने, गोदड़ी पा लैंदे ने, पहरन पा लैंदे ने, रोब ऑफ ऑनर ऑफ विजडम दा कपड़ा अपनी मत उत्ते पा लैंदे ने, उन्हां दी द्रोपती नूं कोई नगन नहीं कर सकता है। जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़, गुद्दड़ डज नॉट मीन गार्बेज, गुद्दड़ मीन्स गोदड़ी, ते भले संसार। क्यों? क्योंकि तिन ने लगा रब सेती, देखने विचार वो एक एक इंसान में को मिलते हैं, अमीर गरीब नहीं समझते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का वितकरा नहीं करते हैं, कम्युनल हेट्रेड नहीं करते हैं, आस्तिक नास्तिक पापी पुन्नी लेबल किसी को नहीं लगाते हैं, सारे उन्हां वास्ते कुदरत के सब बंदे हो जाते ने, सब घट राम बोले दी अवस्था बन जाती है, दोए दोए लोचन पेखा हूं हार भी न वरना देखा अवस्था बन जाती है। मैं राम नाम धन लाद्या बिख लादी संसार, संसार मतलब एक तो लोग अवगुणा की बन्ने गंठड़ी होंदा ना, एक मैं भी अवगुणा की गंठड़ी बन्नी हुई सी ना, ऐ मैं अवगुण छड्डे। कदों छड्डे? जदों मेरे मन ने अपनी तूती बजानी छोड़ दी। मन की तूती है मेरी ओपिनियन, कई बार इसी सच की गल के अगेंस्ट कहते हैं मेरी ओपिनियन में तो ये बात ऐसे होनी चाहिए, नहीं मेरी ओपिनियन में तो पति अगर गाली निकाले तो पत्नी कब तक सुनती रहे, तो पत्नी को फिर उसके आगे खड़ा हो के गालियां ही निकालनी चाहिए। ए तेरी ओपिनियन है, ए मेरी ओपिनियन है, ए मन की मत है। पर सतगुर की मत कहती है अपना अवगुण छड़ना है और अपना कीमती गुण नहीं छड़ना है। बिख लादी संसार उर्वार पार के दानियां लिख लियो आल पताल। साडे सब दे अंदर ना यह शब्द दे विचकार एक बड़ा कीमती पॉइंट है। साडे सब दे अंदर धर्म है, उहदे नियम के मुताबिक असीं चलते हाँ तो असीं सुखी रहते हैं। उसनूं कहंदे ने धर्म राज। हर किसी के अंदर भगवान जी गॉड अल्लाह वाहिगुरु रहता है। अंदर की आवाज को सुनना रजा हुक्म नियम अनुसार चलना कहलाता है। उन्होंने गुरुमुख नादंग गुरुमुख वेदंग गुरुमुख रिया समाई कहते हैं। अंदर की आवाज नूं खुदाई पैगाम कहते हैं, तुर की बाणी कहते हैं, वेद बाणी कहते हैं। अंदर की आवाज नूं सुनिया कर। जदों असी अंदर की आवाज के अनुसार चलते हैं धर्म राय, धर्म राज अनुसार चलते हैं। और वो एक ही धर्म होता है, अनेका धर्म नहीं होंगे ने। मत कोई सोचे मुसलमान जैन हिंदू क्रिश्चियन इस तरीके का धर्मां दियां लड़ियां लगियां हुई ने, यह मजहबां दियां लड़ियां लगियां हुई ने। पर गुरु पातशाह कहते हैं एक को धर्म दृढ़ है सच कोई, सारी दुनिया में एक ही धर्म है। क्या? जो तेरे अंदर भगवान जी रहते हैं उनका नाम तू गॉड रख ले, वाहिगुरु रख ले, राम रख ले, अल्लाह रख ले, बीठल रख ले, हरी रख ले, जो तेरा दिल करता है रख ले। पर अंदर दे रब जी दे कहे अनुसार जे तू टुरे, जमीर की विल की कॉन्शियस की आवाज के मुताबिक अगर तू चले, उसको धर्म बोलते हैं। वो सारी दुनिया में एक ही होता है। साहब मेरा एको है, एको है भाई, एको है। धर्म दुनिया च इको ही होता है। मजहब वखरे वखरे हो सकते हैं, फिलॉसफीज वखरियां वखरियां हो सकती हैं, धर्म एक ही होता है। और उसकी वडियाई देखो, कैसी ऑटोमैटिक मशीन लगी हुई साढ़े अंदर। पवन गुरु पानी पीता माता धरत मां दिवस रात दुदाई दया खेल है सगल जगत चंगियाइयां बुराइयां वाचे। वाचे की होता है?
ਇਹ ਵਾਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਚੈ। ਵਾਚੈ ਹੁੰਦਾ जैसा अंदर ख्याल आया वैसा बाहर प्रगट कर दिया, वैसा बोल दिया। मेरे अंदर पैड़ा ख्याल आया ना, इन्हों नहीं पता लगा, मैं पैड़ा ख्याल, दुनिया को नहीं पता लगा मेरे अंदर मैं हिपोक्रेट हूं, पैड़ा ख्याल आया। लेकिन ये पैड़ा ख्याल धर्मराज सामने देख रहा है मेरा अंदर का, बाहर कोई नहीं होता, ना मरण तो बाद होता, ना ऊपर होता है, अंदर होता है। अंदर दा धर्मराज मेरा देख रहा है, और जैसा अंदर ख्याल आया वैसा मैं बाहर मैनिफेस्ट होवांगा, वैसे मेरे डीड्स बनन गया, वैसे मेरे कर्म बननगे। मैं धर्म तो उलट काम की करूंगा, जैसा मैं अंदर से पैड़ा हूं वैसे को मैं छुपाऊंगा। इसको हिपोक्रेसी बोलते। जियो मैले बारो निर्मल, मन होर मुख होर, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी नाल चैन नहीं आता। तुसी किसी को कह दो मैंने पिछले साल 6 करोड़ 35 लाख कमाए थे, याद रखना पेगा 20 साल बाद भी मैंने क्या कहा था। अगर तुक्का मारिया सी और झूठ बोलिया सी, वधा चढ़ा के कीता सी, 6 करोड़ 35 लाख याद रखना पड़ेगा, लेकिन सच नहीं याद रखना पड़ता। मैनिपुलेशन याद रखनी पड़ती है, सच ना मन के अंदर टिक जाता है, दृढ़ हो जाता है, वो नहीं याद रखना पैंदा। जितनी भी ਅਸੀਂ मैनिपुलेशनस करते हैं, हिपोक्रेसी करते हैं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सुखी नहीं रहते हैं। अंदर दी गल बाहर एक्सप्लेन कर देता, मीन्स अंदर जो कुछ है, जो जिए हुए, जो तुम्हारे अंदर थॉट प्रोसेस है भाई साहब, वही तो करोगे ना। जबरदस्ती किसी को चेंज नहीं किया जा सकता। इस करके एक सेंटेंस बनया, ए मैन कैन नॉट बी चेंज अगेंस्ट हिज विल, बिकॉज आफ्टर द चेंज, जबरदस्ती चेंज करोगे ना, द मैन विल बी एज इज स्टिल, वो ही रहेगा। मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं दे सकिया जो लिखी हुई है, पर अर्थ है ने तुसी किसी को जबरदस्ती पकड़ के चेंज नहीं कर सकते। घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हो, पिला नहीं सकते, पर जे तुहानू जबरदस्ती किसी को बाहरों चेंज किया नजर आएगा, वो अंदर दी बदबू फिर भी किसी ना किसी जगह दिखाई जाएगा। जेड़ा लाहौर पैड़े पिशौर भी पैड़े, अंदर दी गल बाहर हो जाती है ना, इस अवस्था को चित्र गुप्त बोलते हैं। जो अंदर चित्र गुप्त था वो और बाहर प्रकट हो गया। मनु जे खाण पीण का शौक है, मैं गुरुद्वारे जाऊंगा, कीर्तन नहीं सुनांगा, सीधा लंगर अंदर वड़ जाऊंगा। खाण पीण का शौक है, घर भी मैं किचन नहीं करता रहता, घर ही मैं खान पीन दी गल्लां करदा। पर जे मैनू प्रधानगी का शौक है, मैं गुरुद्वारे जावांगा, मैं प्रधानगी करांगा, शब्द दी विचार नहीं सुनांगा। जिन्होंने घर बैठ के गल्लां का शौक है, गुरुद्वारे भी बह के गल्लां ही करनगियां। इस तरीके दे नाल असी अपने अपने, जिस तरह शेरां नूं खाण दा मांस मिल ही जांदा ना, अपने अपने किस्म का असी मांस आहार मुर्दार लभ लेंदे हां और चुन चुन के जाके उन्हां दी संगत करदे हां। पर जैसी संगत वैसी रंगत, और रंगत होती है मन के ऊपर, वैसा थॉट प्रोसेस, जैसा थॉट प्रोसेस वैसा बार बन के आ गया। गुप्त चित्र प्रगट हो गया, सब्जेक्ट टू धर्मराज। उर्वार पार के दानिया लिख लियो आल पताल। जे अंदर मेरे मन ने भैड़े ख्याल लिख भी लेने और मेरी आदत गंदी बन गई है, गलत रंग चढ़ गया है, ना होप इज देयर। होप की है, भावें मन ने गंदे लेख लिखे सन, गलत सुभाव बन गया सी, भया मनूर कंचन फिर होवे, हो सकता है। अगर तू बदमाश भी हो गया है, अगर तेरी आदतें गलत पड़ गई हैं, धर्म का पल्ला फड़ लै, ए तैनूं सिखान गया गुण किवें छड्डीदा है ते चंगे गुणां दा रंग किवें चढ़ाईदा है। यस, दैट कैन बी फिक्स्ड अप बाय वर्च्यूज। चंगे गुणां दा सच्चा रंग चढ़ा के, गॉडली क्वालिटीज़ का रंग चढ़ा के होला महल्ला का अटैक किया जा सकता है। ते धर्म राय जो दुनियावी लोग समझते थे ना, मरने के बाद कोई धर्म राजा होगा, धर्म राय दर कागज फाड़े जन नानक लेखा समझा, लेखा समझ आ गया ना, वो 100 का धर्मराज अब कोई लेखा नहीं लिखता। अब क्या है, जो अंदर था वही बाहर आया है। अंदर अवगुण थे, बाहर अवगुणी स्वभाव था। अब अंदर सच्चा रंग चढ़ाया है, अंदर सच्चा रंग चढ़न नाल की होया है, गॉडली क्वालिटीज वर्च्यूज
ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੋਡਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵਰਚੂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੇਰ ਮੇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। दुनिया अंदर कुदरत के सब बंदे लगते ने, एक पिता एक के मुबारक लगते ने, वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड लगते ने। कैसी अवस्था बन जाती है जदों असी ये वाला होला महला जींदे हाँ। तो तजीले सरब जंजाल मोए जम डंड न लग गई तर तजीले फिर जम बुद्धि तंग नहीं करती है। मोए जम डंड न लग गई तजीले सरब जंजाल। अवगुण छड़ देते। अवगुण की सी काचा तन, अवगुण की सी कसुंभ का रंग, अवगुण की सी मेरा गलत थॉट प्रोसेस। ओ छुटिया मेरे रामैये, मेरे रामैये रंग मजीठ का कौरविदास चमा को बंजारो राम को मेरा टांडा जाए रे। ओ बंजारो राम को मेरा टांडा ला दे रहाओ को बंजारो राम को मेरा टांडा ला जैसा रंग कसुंभ का ऐसा ये संसार। जैसा रंग कसुंभ का ऐसा ये संसार, ऐसा ये संसार, ऐसा संसार।